Hello everyone. Today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 10, dividend and interest. In this chapter first we are going to discuss meaning of dividend and its features. And in next lecture we will going to discuss legal provisions on dividend. So first we will discuss the meaning of dividend. The term dividend means that portion of profit which is distributed among shareholder for their contribution to company. So dividend is that part of profit of company which is distributed among its shareholders. Dividend is a share in distributable profit of the company to which shareholder is entitled when it is formally declared by the company. एक तरह से हम बोलेंगे शेयर पर मिलने वाली इनकम, शेयर होल्डर को शेयर पे मिलने वाली इनकम को हम बोलेंगे डिविडेंड। ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से दिया जाता है। कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट whole of its profit among the shareholders. So company keep a separate portion out of profit for payment of dividend, and so dividend is a part of distributable profit. Here are few definitions as per Institute of Chartered Accountant of India and as per Supreme Court's decision. So we will discuss these definitions first. The first definition is provided by Institute of Chartered Accountant of India, that dividend is a distribution to the shareholders out of profit or reserves available for this purpose. प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर फ्री रिजर्व्स जो कि डिविडेंड देने के लिए बनाए जाते हैं, उनमें से जो अमाउंट पे होती है उसको डिविडेंड कहा जाता है। एज पर डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, in case of going concern, it means portion of profit of company which is allotted to the holder of share in a company. सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के हिसाब से जो डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डिविडेंड को डिफाइन किया है, उस हिसाब से डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। सो यहाँ पे डिविडेंड मीन्स अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट which is distributed among its shareholders. So again, dividend is a portion of distributable profit of the company. Now we are going to discuss the features of dividend. So first important feature again is dividend is a portion of profit which is paid to its shareholder. डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, पे किया जाता है। इट इज़ पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। मोस्टली डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट में से पे किया जाता है। थर्ड फीचर इज डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। सो डिविडेंड का पेमेंट अनकंडीशनल पेमेंट माना जाता है, क्योंकि जब डिविडेंड का पेमेंट करती है कंपनी तो उस समय कंपनी कंडीशंस इम्पोज नहीं कर सकती वाइल पेइंग द डिविडेंड। फोर्थ फीचर इज कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी एंड प्रिफरेंस। कंपनी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड पे करता है। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिपॉजिटर्स को डिविडेंड पे नहीं करता। उनको जो इनकम दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट।
Next feature is if company has issued equity shares with preferential with differential rights as to dividend, the term of issue of such share will govern right of shareholders about receiving the dividend. सो कंपनी अगर इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट के साथ इशू करती है तो उसमें ही कंपनी को स्पेशल राइट मिल जा उसमें ही शेयर होल्डर को राइट मिल जाता है डिविडेंड रिसीव करने का. नेक्स्ट इज डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. सो कंपनी अपने प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. अपने कैपिटल को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी कैपिटल के अमाउंट में से डिविडेंड पे नहीं कर सकती. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स basically manage both the company, so they better understand the profit of the company, the requirements of the company, the future project of the company, and therefore they are the authority. Board of directors are the authority to make recommendation regarding the payment of the dividend. They are the whole and sole authority to decide the rate and amount of the dividend. So, dividend can be declared by shareholders of the company, but this declaration can be made only on the recommendation of board of directors. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड के पेमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं करते हैं तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ रिजोल्यूशन passed at the annual general meeting by the shareholder. So डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर या अथॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन डिविडेंड रिकमेंड करने की जो अथॉरिटी है, डिविडेंड रिकमेंड करने का जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन को शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव करते हैं और डिविडेंड के पेमेंट को डिक्लेयर करते हैं. So we must keep in mind that dividend will be approved and declared by shareholders, but it will be recommended by board of directors only. Dividend for any previous year cannot be declared once that year's annual account has been approved in annual general meeting. तो प्रीवियस ईयर के डिविडेंड का डिक्लेरेशन उस ईयर के एनुअल अकाउंट्स के अप्रूवल के पहले किया जा सकता है, लेकिन जब प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स एनुअल अकाउंट्स एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हो गए तो उसके बाद उसका डिक्लेरेशन नहीं होता है. प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो करंट ईयर में किया जा सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो उस ईयर के एनुअल अकाउंट्स के अप्रूवल के पहले ही वो डिक्लेरेशन किया जा सकता है, बाद में नहीं. डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर creates a date, it cannot be revoked. तो जैसे ही शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड को अप्रूव कर दिया और डिक्लेयर कर दिया तो ये एक तरह से कंपनी पर लाइबिलिटी बन जाता है. कंपनी एक बार शेयर होल्डर्स के द्वारा डिक्लेरेशन होने पर डिविडेंड का
जो रिजोल्यूशन है या पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है उसको कैंसिल नहीं कर सकता, उसको रिवोक नहीं कर सकता. एनी हाउ कंपनी हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ सच डिविडेंड. So it becomes a liability, or we can say it creates a debt on the company once dividend is approved or declared by the shareholder. Next is dividend includes interim dividend as well. तो डिविडेंड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक फाइनल डिविडेंड जिसको एनुअल डिविडेंड भी बोला जाता है, एंड सेकंड वन इज इंटरिम डिविडेंड. तो कंपनी जब सुपर प्रॉफिट अर्न करती है तो मिड टर्म में कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. फाइनल डिविडेंड जो होता है वो पूरे साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी डिक्लेयर करती है. तो फाइनल डिविडेंड इज कॉल्ड एज एनुअल डिविडेंड, बट व्हेन company makes or declares a dividend in the interim period or within the period of 6 months, then it will be called as interim dividend. Next one is dividend must be paid in cash and not in kind. तो डिविडेंड जब भी पे किया जाएगा इट शुड बी इन कैश और इट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स. इट शुड नॉट बी इन काइंड और इन गुड्स. Dividend is to be paid on paid up value of share. If share is fully paid up, then full amount of dividend will be paid on it. If it is partially paid up, then in proportion to the payment the dividend will be paid. तो जिस तरह से शेयर की वैल्यू पे की जाएगी उस पेड अप वैल्यू पे ही डिविडेंड दिया जाएगा. अगर पार्शली पेड अप शेयर है, उसकी आधी अमाउंट आई है, 50% अमाउंट आई है और 50% पेंडिंग है, तो डिविडेंड भी 50% यानी आधा ही डिविडेंड उस शेयर पे दिया जाएगा. तो जिस प्रोपोर्शन में पेमेंट हुआ है शेयर पे उस प्रोपोर्शन में ही डिविडेंड पे किया जाता है. नेक्स्ट, डिविडेंड cannot be paid on calls paid in advance. कुछ शेयर होल्डर्स एडवांस में पेमेंट कर देते हैं शेयर के मनी का, शेयर के अमाउंट का. कंपनी कॉल्स नहीं भी करती है फिर भी एडवांस पेमेंट बहुत से शेयर होल्डर्स कर देते हैं. तो इस एडवांस पेमेंट पर डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा. Usually the term dividend refers to annual final dividend unless it is specifically mentioned as interim dividend. तो जब कभी जहाँ कभी डिविडेंड ये वर्ड आता है तो समझा जाएगा कि वहाँ पर एनुअल या फाइनल डिविडेंड की ही बात हो रही है. अनलेस एंड अनटिल जब तक स्पेसिफिकली इंटरिम डिविडेंड का मेंशन नहीं आता है तब तक समझा जाएगा कि वो एनुअल या फाइनल डिविडेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर हमारा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिविडेंड कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड डिस्कस करेंगे. थैंक यू.